Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel Psychology Facts by Lara. आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे फेडरल बोर्ड का इंटरमीडिएट पार्ट 1 साइकोलॉजी पेपर 2018 का, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है डिस्कस करेंगे और इसको HSSC पार्ट 1 भी कहा जाता है, FA पार्ट 1 या फर्स्ट ईयर भी कहा जाता है। जो व्यूअर्स चैनल के न्यू हैं वो अभी ही चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं MCQs की तरफ। Number 1 MCQ is, according to Dash, psychology is the study of consciousness. Option A, William James. Option B, Sigmund Freud. Option C, J.B. Watson. Option D, Max Wertheimer. The right option is Option A, William James. William James ने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ कॉन्शियस के नाम से एक्सप्लेन किया था। अगर हम सिगमंड फ्रॉइड की बात करें तो ही इज़ अ फादर ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी, और J.B. वॉटसन इज़ नोन एज फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, और मैक्स वर्दाइमर को गेस्टॉल्ट थ्योरी या गेस्टॉल्ट थेरेपी के नाम से जाना जाता है, और ओवरऑल जो है इन्होंने गेस्टॉल्ट लॉ पे ज़्यादा काम किया। Number 2 MCQ is, a clinical psychologist deals with diagnosis and treatment of Option A, physical illness. Option B, neurological illness. Option C, mental illness. And Option D, common illness. The right option is Option C, mental illness. Number 3. The branch of psychology which deals with the law-breaking and antisocial behavior is Option A, personality psychology. Option B, criminal psychology. Option C, developmental psychology. And Option D, experimental psychology. और ओवरऑल अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो लॉ की बात हुई और एंटी सोशल बिहेवियर की बात हुई है, तो ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि क्रिमिनल साइकोलॉजी जो है वो लॉ ब्रेकिंग पर्सनस के साथ डील करते हैं, और ओवरऑल एंटी सोशल बिहेवियर्स जो हैं वो क्यों पैदा हो रहे हैं, उनकी कॉजेज़ क्या हैं और किस तरह से इन बिहेवियर्स को डील आउट करना है, तो वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जो है इन सबको डील करते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Number 4. Wilhelm Wundt established the first dash of psychology. Option A, laboratory. Option B, foundation. Option C, science. And Option D, society. The right option is Option A, laboratory. Wilhelm Wundt ने 1879 में लिप्जिग में जर्मनी में बेसिकली एक लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की, जिसके बाद जो है साइकोलॉजी को एज अ साइंस कंसिडर किया गया और साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली साइकोलॉजी को एक्सेप्ट किया गया एज अ डिसिप्लिन। सो द फर्स्ट लेबॉर्ट्री वाज established by Wilhelm Wundt in Leipzig in Germany. The first step in any experiment is the formulation of Option A, groups. Option B, variables. Option C, problems. And Option D, hypothesis. The right option is Option D, hypothesis. सबसे पहले hypothesis generate किए जाते हैं एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, ताकि ओवरऑल उनको थ्रू आउट द स्टडी टेस्ट किया जाए कि हाइपोथेसिस जो है वो हमारे ट्रू थे, फॉल्स थे, या फिर वो एक्सेप्टेबल थे या नहीं थे। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑप्शन डी, हाइपोथेसिस। नंबर 6. Which one of the following is not the part of research methodology? Option A, experiments. Option B, observations. Option C, diagnosis. And Option D, survey. अगर हम options को देखें तो experiment, observation and survey are the parts of research methodology. Diagnosis is the part of case study, जो कि usually clinical settings में diagnosis दिया जाता है clients को या patients को. So option C is not part of research methodology. Which part of neuron receive the messages? Option A, cell body. Option B, dendrites. And Option C, axon. And Option D, terminal endings. The right option is Option B, dendrites. अगर हम डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट्स आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स, जो कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैसेज रिसीव करता है, फिर सेल बॉडी की तरफ वो मैसेज कन्वे किया जाता है, एंड फ्रॉम दैट एक्सॉन की तरफ वो मैसेज आता है और टर्मिनल एंडिंग्स की तरफ रीच करके वो दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ मैसेज पास ऑन होता है।
So first of all, dendrites receive the messages. Number 8. Associative neurons are present dash the efferent and afferent neurons. Option A between, option B before, option C adjacent to, and option D after. The right option is option A. Associative neurons basically efferent एंड afferent न्यूरॉन्स के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं और यूजुअली ये कम्युनिकेशन जो है वो कर रहे होते हैं बिटवीन efferent एंड efferent न्यूरॉन्स. Number 9. Vitreous humor is present in option A. Cornea, option B. Blind spot, option C. Retina, and option D. Optic nerve. The right option is option C. Retina. Retina vitreous humor retina एंड लेंस के दरमियान में एग्जिस्ट करता है. सो इसीलिए लेंस जो है वो बेसिकली सिकुड़ता नहीं है और लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बरकरार रहती है ड्यू टू विट्रियस ह्यूमर. Number 10. Absolute threshold means option A the minimum physical energy, option B the maximum physical energy, option C equal physical energy, and option D excess physical energy. एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हमने पढ़ा है, मिनिमम थ्रेशोल्ड भी इसको कहते हैं, या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड भी कहलाता है, जिसमें एक स्टिमुलाई को कितना मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई एक पर्सन जब डिटेक्ट कर ले तो उसको एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहा जाता है. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए द मिनिमम फिजिकल एनर्जी विच अ पर्सन कैन डिटेक्ट, जिसमें डिफरेंट सेंसेस से रिलेटेड भी आ सकता है, विजन से रिलेटेड भी आ सकता है कि कितना इंसान कितने किलोमीटर्स या मीटर्स देख सकता है, और इसके अलावा हेयरिंग का क्या है कि कितना ऑडिबल कितना हो सकता है एक पर्टिकुलर साउंड की तरफ. सो ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन किस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी मिनिमम इंटेंसिटी क्या है, वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाता है. Number 11. Thermostat is to furnace as homeostasis is to option A balance, option B brain, option C body, and option D temperature. The right option is option C body. Number 12. Episodic memory represents option A general knowledge, option B skills, option C specific event, option D factual information. एपिसोडिक नाम से इंडिकेट हो रहा है एपिसोड दैट कैन रिलेट टू एनी स्पेसिफिक इवेंट. कोई भी स्पेसिफिक इवेंट की मेमोरी जो होगी वो एपिसोडिक मेमोरी कहलाएगी, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है. नंबर 13. डैश deprivation causes immediate death. ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी वाटर, एंड ऑप्शन डी स्लीप. द राइट ऑप्शन इज option B oxygen. Which one of the following is an objective test? Option A MMPI, option C word association test, option B Rorschach ink blot test, and option D thematic apperception test. The right option is option A MMPI test. अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, रॉशैक इन ब्लॉट टेस्ट और TAT यूजुअली प्रोजेक्टिव टेस्ट कहलाते हैं और ये अनकॉन्शियस कंटेंट को रिवील करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो यहाँ पे MMPI जो है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, बाकी सब जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट है. Number 15. Oral stage of psychosexual development starts from option A birth to 18 months, option B 2 years to 4 years, option C 4 years to 6 years, and option D 6 years to 10 years. The right option is option A birth to 18 months. Number 16. Dash believe that physiological arousal and emotional experience occur simultaneously. Option A Sigmund Freud, option B James Lang, option C Canon Bard, and option D Scatcher Singer. The right option is option C Canon Bard. कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस के अकॉर्डिंगली हम फिजियोलॉजिकल अरोजल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस करते हैं. अगर जेम्स लैंग थ्योरी की बात करें तो जेम्स लैंग ने कहा था कि फिजियोलॉजिकल अरोजल को जब ब्रेन इंटरप्रेट करता है तो तब हम इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं. और स्कैचर सिंगर थ्योरी के अकॉर्डिंगली
ओवरऑल हमें इमोशंस जब भी हम एक्सपीरियंस करते हैं हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे फिजियोलॉजिकल अरोजल किस वजह से हैं और उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली उसको असेस करते हैं, जिसके बाद हम उसे इमोशनल लेबल दे देते हैं। Number 17. Aggression is a dash emotion. Option A positive, option B negative, option C neutral, and option D constructive. The right option is option B negative. Number 18. Problem focused coping refers to option A understanding and removing the causes of stress, option B making no effort and relieving anxiety, option C using defense mechanism, option D expressing anger in front of people. ओवरऑल प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग या कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो यूजुअली स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए होती हैं, या फिर किस तरह से हम स्ट्रेस की कॉजेज को फाइंड आउट कर सकते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। ओवरऑल अंडरस्टैंड करना होता है स्ट्रेस को। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अंडरस्टैंडिंग एंड रिमूविंग द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। Number 19. Ways is used to measure option A personality, option B emotions, option C intelligence, and option D behavior. Ways stands for Wechsler Adult Intelligence Scale, and the right option is option C, it measures intelligence. Number 20. The motor area is located in dash part of brain. Option A frontal lobe, option B parietal lobe, option C temporal lobe, and option D occipital lobe. The right option is option A frontal lobe. अगर हम इनकी फंक्शंस की बात करें तो ओवरऑल फ्रंटल लोब जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है, जिसमें प्लानिंग, थिंकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशंस एंड बिहेवियर कंट्रोल में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पैराइटल लोब की अगर बात करें तो ये ओवरऑल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, टेस्ट, टच, टेम्परेचर की सेंसेशन को असेस करता है, इसके अलावा मूवमेंट में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्पोरल लोब हियरिंग, लर्निंग एंड फीलिंग से रिलेट करता है, ओवरऑल इसके फंक्शंस परफॉर्म करता है। और ऑसिपिटल लोब जो है वो विजन से रिलेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मज़ीद साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।